Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Scorpion Ascendant and the predictions for the month of August 2023. So for your Ascendant Lord Mars is going to be in the 10th house till 18th of August, and after that it is going to move into the 11th house. So for the first 18 days the focus will be completely on the career. Mars is going to combine here with Mercury, which is the Lord of Gains, which means that this month is going to be about progress on the professional front and then reaping the subsequent gains when Mars moves into the 11th house on 19th of August. This placement of ascendant will be further aided by the 10th house lord Sun coming in its own sign on 17th of August. So you can see yourself getting a huge uplift at the workplace and getting the requisite name and fame in your professional domain in this month. People who are in domains that are related to insurance, research, surgery, mining, manufacturing, and technology related fields, along with taxation, will see a good inflow in their profession in this month. People who are willing to change jobs will also find opportunities in the time frame of 17th August and 15th September. Venus for you is the significator of your married life, and it is going to be in a retro position for the whole month, transitioning through the ninth house. In case you are planning for a religious trip with your spouse, then it will prove to be a very fruitful activity for this month. If you happen to be connected to the business that is related to education or publication, then you will see a very good and robust growth in these businesses. Jupiter for you is the lord of fifth house as well as a second house for you, and it rules over your intellect, speculation, creativity, education, and self earned wealth. It is combining with Rahu in your sixth house. So 17th and 18th of August will prove to be very fruitful days for you to generate any gains from speculation. And if you are a student, then the time frame of 19th to 26th of August is very good for appearing in the competitive exams. Now, there are also certain days where you need to be careful about in the month of August, and you should avoid taking any key decisions. These dates for you are 7th and 8th of August, 12th and 13th of August, and 22nd and 23rd of August. Just avoid taking key decisions and arguing with people during these 6 days. If you look overall, a lot of energy is getting accumulated in the 10th house in the month of August, because not only Sun is moving in its own sign, its friend Mercury is sitting there, and Jupiter is aspecting this 10th house through 5th aspect. Saturn is aspecting the 10th house through 7th aspect. So this month the entire focus is about progress at the professional front and then reaping the gains and rewards out of the action that you do in this month. So enjoy this month, and I wish you luck at your workplace in the month of August. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, आपके लग्न के लिए लग्नेश मंगल दशम भाव में बैठे रहेंगे 18 अगस्त तक, यानी इसका मतलब है कि आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर होगा पहले हाफ में अगस्त के। मंगल यहाँ पे बुध के साथ युति करेंगे और बुध एकादश भाव के मालिक हैं। तो लग्नेश का एकादश भाव के साथ युति करना यानी कि आपको अपने कार्यस्थल पर काफ़ी गेन्स होने की बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है इस महीने में। और इसके बाद मंगल 11वें भाव में चले जाएंगे 19 अगस्त को। तो यहाँ पर भी फिर से लग्नेश का 11वें भाव में जाना और दशमेश का दशम में अपनी राशि में बैठना बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बनाता है। इस समय में आपको 17 अगस्त से 31 अगस्त के समय में कार्यस्थल पे कोई एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। या तो आप अपने ही कंपनी में ऊपर के लेवल पर प्रमोट होंगे, या हो सकता है आपको इस समय में कोई बाहर से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि आप अपने लेवल को बढ़ा सके प्रोफेशनली। जितने भी लोग इंश्योरेंस से संबंध रखते हैं, रिसर्च, सर्जरी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यवसायों में या नौकरियों में हैं, या टैक्सेशन से संबंधित नौकरियों में, उनके लिए इस समय में अच्छा पैसे का इनफ्लो होगा इस महीने में। और इसके अलावा अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप लोगों को 17 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में काफ़ी मौके मिलेंगे जिसमें कि आप एक अच्छी नौकरी पे जंप मार सकते हैं। आपके लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो कि जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर को दिखाता है। यहाँ पे शुक्र
आपके नवम भाव में बैठे रहेंगे और पूरा महीना ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो अगर आप इस समय में अपने पति या पत्नी के साथ कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं, खास करके रिलीजियस ट्रिप अगर प्लान करते हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी इस महीने में। और अगर आप एजुकेशन या पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं तो इस महीने में आप अपने धंधे में भी तरक्की होते हुए देखेंगे। गुरु आपके लिए पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव से आप स्वयं का कमाया हुआ धन देखते हैं और पंचम भाव से आप अपनी बुद्धि, शिक्षा, सट्टा बाजार को देखते हैं। यहाँ पे गुरु छठवें भाव में राहु के साथ युति करते रहेंगे। तो अगर आप स्पेक्यूलेशन से संबंध रखते हैं तो 17 से 18 अगस्त 2 दिन ऐसे हैं जब आप बाजार में काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इस समय में गुरु की भी सूर्य के साथ नवपंचम योग बनेगा और सूर्य भी अपने ही भाव में आएंगे तो तुरंत परिणाम देंगे। तो यही दिन आपके लिए शेयर बाजार की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो 19 अगस्त से 26 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने की दृष्टि से। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए और इन दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपको टालना चाहिए। तो आपके लिए वो दिन जब आपको अगस्त के महीने में सावधान रहना है वो है 7 और 8 अगस्त, 12 और 13 अगस्त और 22 और 23 अगस्त। इन 6 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना आप टालिए। अगर आप कुल मिला के देखिए तो 10वें भाव में 4 ग्रहों की ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। सूर्य अपनी ही राशि में है, बुध मित्र की राशि में है, शनि की 7वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि। तो जब भी कभी एक ही भाव में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा होता है तो वो आपका पूरा फोकस ही उस भाव पर हो जाता है। तो ये मंथ में पूरा का पूरा फोकस रहेगा प्रोफेशनल आपकी जर्नी पे, कार्यस्थल पे आप कैसे तरक्की करते हैं, कैसे ऊपर उठते हैं। और लग्नेश का 11वें भाव में जाना 19 अगस्त से, यानी कि फिर उन कर्मों से आपको क्या लाभ होता है। तो ये 10वां और 11वां जो दो भाव हैं इन्हीं पे आपका पूरा फोकस रहेगा पूरे महीने के दौरान। तो मेहनत कीजिए और उससे होने वाले गेन से इस महीने को आप एंजॉय कीजिए। तो ये समरी है आपकी इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।